کو ضرورت ہے جو ہر ایک معالج کے لیے، ہر ایک حکیم کے لیے اور ہر ایک اس انسان کے لیے جو انسان کو صحت، بیماری، پریشانی اور نفسیاتی امراض یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے وہ پتہ کرتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ادویات سے میڈیکل سٹور بھرے پڑے ہیں، پنساری کی دکانیں بھری پڑی ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے جنگلات ہیں، ہمارے گھر کے جو گارڈن ہوتے ہیں ان میں بھی وہ خواہ کچھ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، وہ فضول نہیں ہوتی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان کے اندر وہ چیز اللہ نے رکھی ہے جو ہمیں ایک منٹ کیا ہو گیا ایک منٹ کیا نہیں ہے کوئی آگے ہوگا کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر شعیب نے دیکھو خوش کر دیا، خوش کر دیا ڈاکٹر صاحب نے شعیب نے دیکھو وہ اپنے کیا ڈالتی ہوں کیا کر دیتا ڈی پی پہ میں نے فوٹو لگا پتا جس میں میرے موبائل پہ ڈی پی رہے گا نا اس کی واٹس ایپ کی جو گروپ پہ ڈی پی اس ڈی پی پہ ڈاکٹر شعیب، ڈاکٹر شمس اللہ اور ایک آدمی ہوتا ہے۔ اچھا تو کسی نے ان سے فون کرا ہوگا کیونکہ وہاں کے لوگ ہیں نا، حضرت آپ کا فوٹو ہے ڈی پی پہ ایسے ایسے، تو انہوں نے فوٹو اٹھوایا ڈاکٹر شمس اللہ صاحب نے۔ ویسے تو بولنے کیمرہ آن کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا بات ہو رہی تھی یہ وعلیکم السلام کہ نبض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کرتے ہی یا دیکھتے ہی مہارت پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس معالج کے اور اس حکیم کے، اس طبیب کے فن میں نکھار پیدا کر دیتا ہے، اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جہاں پر انسان ایک بہترین زندگی گزارتا ہے اور جہاں پر انسان کو ایک اچھی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ ایک معالج کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ ہم لوگ اس کی تشخیص پر یقین کرتے ہیں اور اس کی تشخیص کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کی تشخیص پر ہم ایک یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہم نبض پر یہ ولاگ کریں گے اور نبض پر ہی ہم یہ ساری چیزیں کریں گے۔ اب میں نے آپ کو جو تصویر سینڈ کی ہے، یہ آپ کا جو مائک ہے یہ خرابی پیدا کر رہا ہے۔ آپ اپنا مائک، یہ آواز گھوم رہی ہے، پتہ نہیں کس کا کھلا ہوا ہے، یہ آپ اپنی آواز کو میوٹ کریں۔ آپ کے بیٹے کا کھلا ہوا تھا۔ جب آدمی طبیب بنتا ہے، اب دیکھیں پنساری کی دکانیں، پنسار کسی کا فون تو نہیں آ رہا؟ کون ہے ان کا بیٹا؟ اچھا شکیل اشرفی۔ سب کی رک جا تمہارے روم میں میری ویڈیو بدل گروپ میں کال کری جا رہا ہے یہ تو وہ اسٹارٹ میں کرا تیری کال کٹ گئی۔ ان کے پاس پیاری کی کھولی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی حضرت آواز نہیں آ رہی، آواز بیچ میں رک رہی ہے۔ جی حضرت آواز تو آ رہی، ہیلو جی آواز رک رک آ رہی ہے۔ یہ آواز کیوں؟ یہ ابھی تک آپ لوگ ایڈمٹ ہو رہے ہیں، اب کیا کروں میں؟ دوسرے موبائل سے فوٹو کھینچ کر تم ریکارڈنگ دوسرا نہ
रही थी मैं दूसरे में रिकॉर्डिंग में दूसरे में रिकॉर्डिंग I don't know कहाँ वैसे मैंने वही तो अच्छा, नहीं थी। ये जो स्क्रीन चल रही है आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि इसमें अब आप ये चीज देखें कि ये तीन आज़ा हैं, ये दिमाग है, इतना पानी था ये दिल है जब मिलाया और ये जिगर है। अब दो चीजें इस अंदाज से होंगी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि दो चीजें इस अंदाज में होंगी कि आप दिमाग की चीजें आप चीज ये देखनी है पानी और दूसरी चीज देखनी है हवा। जो इसके शेयर कर रखी जब आप पानी और हवा को देख लेंगे और इसमें फर्क महसूस कर लेंगे तो फिर आपके सामने नब्ज़ खुल के सामने आ जाएगी। मसलन ना बस आप ये देखें, ये मैसेज में जो है मैं आपको एक तस्वीर भेज रहा हूँ, ये आप इसमें देख लें। पता नहीं किसी को भी दिखता हमारे वहाँ तो कहाँ कुछ भी जाएगी तस्वीर। यही बीमारी है वो बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर। बस ठीक वर्षा नहीं गई ये तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है। कैसा है कौन है आज हमारा लाइट का कपड़ों का इंगित पैंट ये जो तस्वीर है इसे आप देखें, इसमें से सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है, सबसे ऊपर दिमाग है। अब ये दिमाग जो है अगर ये दिल की तरफ आएगा तो हम इसे कहेंगे ये आसाबी अजलाती है। ये देखें, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये फिर मैं इसकी वजह भी बताता हूँ कि हमें इन पेज की फाइल खोल। ये देखें, ये दिमाग है और ये जो तीर का निशान आ रहा है इसे कहते हैं आसाबी उजलाती। ये खबर रसा है, यानी वो जो आज़ाद जिस्म में एहसास पैदा करते हैं। आपके हाथ पर मक्खी बैठी, चेहरे पर बैठी, कोई मच्छर आया, कोई किसी कुत्ते ने भौंका या कोई भी खतरा पैदा हुआ, तो ये जो आसाब होते हैं ये तहरीक होती है आसाबी उजलाती, यानी खबर रसा। सबसे पहले एक बात ये सुन लें कि जो एहसासात हैं वो दिमाग के मातहत हैं, जो एहसासात हैं वो दिमाग के मातहत हैं, और जो हरकत हैं वो उजलात के मातहत हैं, और जो ग़िज़ाइया निज़ाम है वो हुदूद के मातहत है। अब दो चीज़ें हैं, एक एहसास का होना, एक एहसास का होना, और दूसरा है उस एहसास पर रद्द अमल का आना। इसे कहते हैं हुक्म रसा। जो पता लगाता है इसे कहते हैं खबर रसा, यानी जासूस। ये जो तहरीक उभरती है वो होती है आसाबी उजलाती, ये मशीनी तहरीक होती है। इसी तरीके से आप आगे चले जाएं कि जब ये दिमाग का जो सिलसिला है दिल के साथ लगेगा तो ये आसाबी उजलाती हो जाएगा, और जब इसका जो दूसरी तहरीक है जिसे हम कीमियावी तहरीक कहते हैं, तो इसकी जो तहरीक बनेगी वो बनेगी आसाबी हुद्दी, हुक्म रसा आसाब, ये कीमियावी तहरीक है। अब देखें, ये जो साथ में ये लगा हुआ है इसमें आज़ाए रईसा और उनके खुदाम, एक तरफ जो ये ताबीज़ सा बना हुआ है आप इसे देखें, खबर रसा और हुक्म रसा।
خبر رساں جو اعصاب ہیں وہ کام کرتے ہیں جب دل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور حکم رساں جب اس وقت کام کرتے ہیں جب وہ جگر کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جگر کے دو خدام ہیں، ایک حدود جاذبہ اور دوسرا ہے حدود ناقلہ۔ یعنی جو حدود جاذبہ ہے، جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، تو وہ جو جسم کا حصہ بنتی ہے، فضلات الگ ہو جاتے ہیں، وہ قیموس، کینوس اور آخر میں جا کے جو استحالہ بنتا ہے، وہ تمام پروسیس یہ حدود کے ماتحت ہوتا ہے، اور اس تحریک کو حدود جاذبہ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو فضلات بنتے ہیں، یعنی جب ہم کوئی غذا کھاتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جسے ہم فضلہ کہہ سکیں۔ فضلہ اس معنی میں آتا ہے کہ ہمارے جسم کو اس بچے ہوئے حصے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ جو غذا جو ہوتی ہے اس میں سے جو فضلہ بنتا ہے وہ ہمارے جسم کی ضرورت سے فالتو ہوتا ہے، تو وہ جسم سے خارج ہو کر جسم سے باہر آ جاتا ہے، اور یوں ہمیں ہماری ضرورت، ہماری غذائیت پوری ہو جاتی ہے، اور جو فضلات بن کر ہمارے جسم کے قابل نہیں رہتا وہ جسم سے باہر خارج ہوتا آتا ہے۔ اب تیسرا عضو آتا ہے ارادی عضلات اور غیر ارادی عضلات۔ حرکات جو ہیں یہ عضلات کے ماتحت ہوتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ یہ میرا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اب یہ جو ہاتھ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عضلات میرے کام کر رہے ہیں۔ ایک ارادی ہے، میں چاہوں تو اسے اس طرف گھما دوں، میں چاہوں اس طرف گھما دوں، میں چاہوں التحیات کی انگلی میں، التحیات کی صورت میں جب اشہد اللہ پہ انگلی کھڑی کر لوں، یہ ہو گئے ارادی، یعنی میرے اپنے کنٹرول کے مطابق جو حرکات ہیں وہ مکمل ہو جائیں۔ اور دوسری ہے غیر ارادی، یعنی میدہ ہے، ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم اٹھ رہے ہیں، ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آتے ہیں، یہ اپنے کام میں چل رہی ہیں، خون ہے وہ چل رہا ہے، یہ غیر ارادی ہیں۔ ان میں ہماری ارادت کی یا ہمارے حرکت کرنے کی، ہمارے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آٹو کام کرتے ہیں، تو اس لیے اسے کہتے ہیں غیر ارادی۔ اور اگر یہ کنٹرول جو قدرت نے ہمارے جسم میں رکھا ہے دماغ کے ماتحت، اگر اس دماغ کے ماتحتی کو کوئی چیز خلل ڈال دے، خراب کر دے، تو وہ جو اعضاء کنٹرول میں تھے وہ بعد میں غیر کنٹرول والے ہو جاتے ہیں، اور وہی اعضاء غیر ارادی طور پر حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آواز نہیں آ رہی، آواز آ رہی ہے بھائی، آواز آ رہی ہے۔ یہ اسکرین چھوٹی ہو رہی ہے، اگر اسے بڑی کری جائے تو سمجھ میں آئے گا۔ یہ تو دیکھ بھی نہیں رہی اسکرین، اچھا نظر ہی نہیں آ رہا ہمیں تو۔ راشا میں بھائی آپ یہ باتیں بند کریں، یہ کلاس کو چلنے دیں۔ راشا جو ہوتا ہے، راشے میں جو حرکات ہوتی ہیں، یعنی جب ہمارا دل دھڑکتا ہے اور خون پورے جسم میں جاتا ہے تو اس میں وائبریشن ہوتی ہے۔ یہ کیمرہ بند کر دے بھائی، اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو رابطے کا خلل ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو خیر، جب آپ یہ چیز کرتے بھائی، آپ کا کیمرہ چل رہا ہے، آپ کیمرہ بند کر دیں تاکہ جو ہے نا یہ بار بار جو ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے آپ کی طرف سے یہ نہ ہوگا۔ خیر، اس میں یہ ہے کہ جب راشا ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم میں ایک کنٹرولر لگا ہوتا ہے جو ہمارے اعضاء کو بغیر حکم کے
حرکت کرنے سے باز رکھتا ہے. جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ حرکت ہوتی ہے اور جب ہم ارادہ نہیں کرتے تو نہیں ہوتی. جب راشا ہو جاتا ہے تو وہ جو کنٹرولر لگا ہوا ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. پھر نہ تو گردن ہمارے ہاتھ میں رہتی ہے اور نہ یہ ہاتھ پاؤں ہمارے رہتے ہیں. ایسے ایسے ہر وقت ہاتھ ہلتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے اسے کہتے ہیں غیر ارادی عضلات. اب آپ ایک چیز پڑھیں کہ میں آپ کو نبض پڑھا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے نبض کو کیسے دیکھنا ہے. آپ نبض کو اس انداز میں دیکھیں کہ ہاں یہ دیکھیں یہ سکرین آپ کے پاس آ گئی ہے. اب یہ چیز دیکھیں کہ میں آپ کو یہ شروع سے دکھاتا ہوں. یہ میں نے آپ کو شیئر بھی کر دی ہے, یہ آپ اپنے اس میں دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں نبض اور تحریکات, کچھ نبض کے بارے میں کچھ اہم باتیں. مشینی تحریک میں خالص خلط بنتی ہے اور یہی خلط اس عضو کی خوراک ہوتی ہے. یعنی جب مشینی تحریک ہوگی تو جو خلط دماغ کے لیے بنے گی وہ بلغم ہوگی اور جگر کے لیے بنے گی تو وہ جگر کے لیے ہوگی اور جو عضلات کے لیے بنے گی وہ عضلات کی خوراک ہوگی. یعنی جس تحریک کے ساتھ وہ چیز چلتی ہے اسی تحریک کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. مثلاً غدی عضلاتی حدود جاذبہ گرم خشک میں جگر کی خوراک خالص صفرا ہوتی ہے. اسی طریقے سے خبر رساں اعصاب کی خوراک خالص بلغم یعنی اعصابی غدی ہوتی ہے. اسی طریقے سے تیسرا عضو ارادی عضلات یعنی عضلاتی اعصابی ہوتی ہے. ان تینوں تحریکوں میں تینوں خالص اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں. اگر اخلاق اعتدال کے ساتھ جسم میں پیدا ہو کر جمع رہے تو صحت قابل رشک ہوتی ہے. اگر کسی وجہ سے یہ اعتدال قائم نہ رہے تو اخلاق میں بے اعتدالی وبال جان بن جاتی ہے. اس افرادی کیفیت کو معتدل کرنے کے لیے ہمیں مشینی کیفیات پیدا کرنی پڑتی ہے. مشینی تحریکات جسم سے فالتو اخلاق اور غیر ضروری مواد کو خارج از جسم کر کے انسانی صحت کو اعتدال کی طرف لاتے ہیں. تکمیل جسم یا حیاتی جب غذا کھائی جاتی ہے, اب اس چیز کو غور سے دیکھیں, جب غذا کھائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیفیات بنتی ہیں. سب سے پہلے کیفیات بنتی ہیں. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس میں یہ لذت ہے, مجھے سکون آ گیا, میرا پیٹ بھر گیا, میں سیراب ہو گیا, یہ کیفیت ہے. اور اس سے جو احساسات پیدا ہوتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد اخلاق بنتے ہیں. یعنی یہ جس طریقے سے 6 تحریکیں ہیں اسی طریقے سے یہ 6 درجات ہیں جن میں اخلاق بنتی ہے. جب غذا کھائی جائے تو سب سے پہلے کیفیت بنتی ہے, اس کے بعد اخلاق, اس کے بعد اعضاء یعنی جو جسم سے خلط بنتی ہے یا جو جوس بنتا ہے وہ جب مجسم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو چیز معاری سے وجود میں آتی ہے وہ اعضاء ہیں, وہ اعضاء ہیں. اب دیکھیں جب اعضاء بن جاتے ہیں انہیں حرکت دینے کے لیے ارواح کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یوں سمجھے کہ اعضاء ایک قسم کے ہارڈ ویئر ہیں اور ان کو چلانے کے لیے سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو روح کہتے ہیں اور اس کی جمع ارواح ہے یعنی حیوانی بھی ہے. یہ 3 قسم کی روح ہوتی ہے, اس کی بحث آگے آئے گی. اس کے بعد قوت پیدا ہوتی ہے, قوا پیدا ہوتے ہیں. یعنی
झूठ समझे कि जब एक अज़ू मौजूद है वो बन गया, उसका उसके अंदर रूह आ गई। अब रूह और जिस्म को मिलाकर जो चीज कुव्वत अमल में आएगी उससे हम कहेंगे कुव्वत। आप ऐसे करें कि आपको दोबारा मैं लिंक भेजता हूँ, ये साथी बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैं दोबारा से आपको लिंक ये आ रही है अभी तो आ रही है, आवाज आ रही है आपका। नहीं, आपका तस्वीर चेहरा को मैं नजर नहीं जान आ के रहा। नहीं भेज रहा ना, क्योंकि वो फाइल खुली हुई है। जो में आते हैं इखलाक के बाद आज़ा बनते हैं, आज़ा के बाद अरवा बनती है, अरवा के बाद हरकत पैदा होती है। अब इस चीज को अगर हम यूं देखें कि आपने इस चीज को परखना कैसे है। अब देखें, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप अपनी कलाई पर 4 उंगलियां रखें, 4 उंगलियां रखें और ये जो उंगलियां हैं इन्हें बराबर में करके रखें, इन्हें बराबर रखें। अब 2 चीजों का इदराक करें, हवा और पानी। Recording in progress. हवा पानी को महसूस करना मुश्किल काम नहीं है। अगर नब्ज में हवा की ज्यादती होगी तो नब्ज में कुव्वत होगी और सख्ती होगी। इसी तरह अगर नब्ज में पानी की ज्यादती है तो नरमी और सुस्ती होगी। अगर इन दोनों बातों का एहसास ना हो तो बाकी हरारत ही बचती है। इन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज नहीं है। अब आप आगे से 2 चीजें देखें। मैंने तीनों अज्जा को या तीनों अफ़आल को या तीनों आज़ाए रईसा को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2-2 हिस्सों में समझा दिया है। एक ये कि पानी वाली नब्ज का पहला दौर या उसकी शनाख्त क्या है। अगर पानी का ताल्लुक हरारत के साथ है तो शराइत नब्ज में हुजम को समझिए। हुजम कहते हैं मोटाई, पतलाई, ऐसी चीजों को। ये नब्ज कलाई में शहादत वाली उंगली के नीचे दबाव देने से महसूस होगी। तिब की जबान में इसे बलगम यानी तर गरम और कानून मुफरद आज़ा के मुताबिक आसाबी हुद्दी होगी, यानी दिमाग का ताल्लुक जिगर के साथ जुड़ा हुआ है। बअल्फाज दीगर पानी में हरारत मौजूद है। ये आसाब की पहली नब्ज हो गई। दूसरा दौर, पानी वाली नब्ज का ताल्लुक हरारत से टूटकर खुश्की से जुड़ गया है। तो इस नब्ज की शनाख्त ये होगी कि शहादत वाली उंगली के नीचे बगैर दबाव यानी ऊपर ही महसूस होगी। अहले तिब इसे पुख्ता बलगम यानी तर सरद का नाम देते हैं। कानून मुफरद वाले इसे आसाबी उजलाती कहते हैं। इस नब्ज को शराइत कवाम के तहत समझना चाहिए, यानी अब दिमाग का ताल्लुक जिगर के बजाय दिल से जुड़ गया है। अब 2 चीजें देखें, इसमें 6 नब्जें हैं, 6 की अलग-अलग शराख्त है। अब पहली जो नब्ज है पानी का ताल्लुक हरारत से यानी आसाबी हुद्दी है, तो शराइत नब्ज के हुजम से देखें, यानी जब कहीं पानी भरता है तो उसमें हुजम होता है। मसलन आपने गुब्बारे में भर दिया, किसी लचकदार चीज में पानी भर दिया, अब वो फूला है, लंबाई में है, वो पिलपिला है, वो जैसा भी है, इसे हुजम बोलते हैं। तो इसको देखें। और दूसरी बात ये, अगर खुश्की से जुड़ गया है, अब उसमें वो तो रही नहीं, तो इसे हम आसाबी कहते हैं। शराइत कवाम यानी जब पानी किसी सख्त चीज के साथ मिलेगा, आटे के साथ मिलेगा, मिट्टी के साथ मिलेगा, किसी ऐसी चीज के साथ जो खुश्क होगी, तो अब वो ना तो पानी रहेगा और ना ही वो चीज खुश्क रहेगी। अब जो वो चीज बनेगी उसे हम कवाम कहेंगे।
यानी यूं लगा ले कि आटे में आपने पानी डाला, आटा खुश्क है, पानी तर है, अब दोनों को जब मिलाया तो अब आप ये चीज देखें कि उसका कवाम यानी वो गाढ़ा है, पतला है, सख्त है, नरम है, ये चीज देखें। ठीक है, आगे दूसरी नबज, हवा वाली नबज यानी उजलाती नबज। हवा वाली जो नबज होती है इसका ताल्लुक अगर पानी से हो जाए तो नबज का एहसास शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली तक होगा। मकाम के लिहाज से 2 उंगलियों तक महसूस की जा सकती है, यानी आपने 4 उंगलियां नबज के ऊपर रखी, अब जो पहली 2 उंगलियां हैं उनके नीचे नबज महसूस होगी और जो आखिरी 2 उंगलियां हैं इनके नीचे नहीं, यानी शहादत की उंगली और इसके साथ वाली उंगली। अगर नबज ये होगी उजलाती आसाबी यानी खुश्क सर्द, तो इससे सौदाए खाम कहते हैं, मुफरद आज़ा वाले उजलाती आसाबी नबज कहते हैं, यानी दिल का ताल्लुक दिमाग से जुड़ गया है। और नबज का मकाम समझे, मकाम से बात ये है नीचे है, 2 उंगलियों के नीचे, 3 उंगलियों के नीचे, 4 उंगलियों के नीचे, तो मकाम से बात ये है जो खुश्क सर्द नबज होगी वो पहली 2 उंगलियों के नीचे महसूस होगी। अब हवा वाली नबज, हवा का ताल्लुक पानी से हटकर जिगर यानी हरारत से जुड़ गया है। इसकी शराब ये है कि शहादत वाली उंगली के साथ वाली 2 उंगलियों तक महसूस होगी। अहले दिन इसे सौदाए पुख्ता यानी खुशक गरम मुफरद आज़ा वाले उजलाती हुद्दी कहते हैं। इसे शराइत करा यानी चोट के तहत समझें, यानी जब आप गर्मी हवा को जब गर्म करते हैं तो उसमें बुलंदी बढ़ जाती है और उसमें लताफत बढ़ जाती है, और वो लताफत हरकत को जल्द वक़ूफ़ पसीर करने में मददगार होती है। तो इसलिए जो चोट लगती है उंगली के नीचे, इसके तहत हम तीसरी नबज को समझेंगे। अब आ गई हरारत वाली नबज यानी हुद्दी नबज। अब इस हुद्दी नबज को हम ऐसे समझेंगे, हरारत का ताल्लुक हवा के साथ है, यानी हवा को हमने गर्म कर दिया तो ये नबज सबसे लंबी होती है, यानी 4 उंगलियों तक रफ्तार में तेज जल्दी जल्दी ठोकरें महसूस होती है। जब मालिक उंगलियों पर नबज महसूस करता है तो ये जल्द जल्द हरकत करती है, जैसे दिल धड़कता है, जैसे कोई चीज जल्दी जल्दी हरकत करती है। इसी तरीके से ये सुफ्राए खाम है यानी गरम खुश्क नबज है, मुफरद आज़ा वाले, इसे हुद्दी उजलाती कहते हैं। इस नबज का ताल्लुक दिल का जिगर के साथ जुड़ गया है। हरारत वाली नबज का दूसरा दौर, अगर हरारत का ताल्लुक हवा से टूटकर पानी से जुड़ जाए तो उसे नबज मोतदिल कहते हैं। ये नबज दरमियान वाली 2 उंगलियों के नीचे दरमियाने दबाव से महसूस होती है। शराइत नबज मिक़दार है यानी पुख्ता सुफरा, मुफरद आज़ा वाले, इसे हुद्दी आसाबी कहते हैं, यानी जिगर का ताल्लुक दिमाग से जुड़ गया है। अब आप कुछ चीज़ें जो अब मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ, इस ग्राफ को आप समझने की कोशिश करें। ये स्क्रीन शेयर करें। ये देखें, ये मैंने जो आपको ये चीजें समझाई थी वो ये है, ये पानी वाली नबज है, यानी जो ये दिमाग है ये पानी है, इसे आप पानी समझें, और ये जो दिल है इसे खुश्क समझें, इसे गैस समझें, इसे हवा समझें। जब या ये महसूस होगा, ये ठंडक होगी जैसे पानी की
लहरें होती हैं, पानी नीचे की तरफ जाता है, उसमें बहाव होता है और वो लिक्विड होने की हैसियत से वो थर्राता है, ऐसे ही आसाबी नब्ज़ होगी। और जब खुश्की होगी तो खुश्की में सख्ती होती है, गैस होती है, और ये अगर गैस ज़्यादा है तो उभरी हुई महसूस होगी, कम है, और अगर इन दोनों में से कोई चीज़ ना हो तो फिर जिगर रह जाता है, जिसे हम गर्मी कहते हैं। अब ये देखें, इसमें ये नीचे ये मैंने बता दिया है, आसाबी गुद्दी गहरी पतली 1 से 2 उंगल कदरे मोटी तेज मोतदिल मामूली दबाव से महसूस होती है और नरम होती है। दूसरी नब्ज़ है उज़लाती आसाबी, 2.5 उंगल तक दिमाग से हल्की गर्म होती है, रियाह से पुर होती है, सख्त उभरी हुई होती है, रफ्तार में तेज होती है, ये कीमियावी है। नंबर 3 उज़लाती गुद्दी, 3 उंगल तक तवील तेज रफ्तार लिब्स में कदरे गर्म होती है। और आगे आती है कि गुद्दी उज़लाती 3 से 4 उंगल तक बल्कि ज़ायद तक रफ्तार में तेज होती है, लेकिन ना तो ये नीचे गड़ी हुई होती है ना ज़्यादा उभरी हुई होती है, ये दरमियान में होती है, जिसे मोतदिल कहते हैं। फिर आती है गुद्दी आसाबी, 3 उंगल तक नरम गरम होना, कमज़ोर हल्की मोटी होना, ये मशीनी तहरीक है। आसाबी उज़लाती 1 था 2 उंगल मोटी और सुस्त। अब आप एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और वीडियो को कैमरा चला है। जो मैंने ये नक्शा दिखाया है ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, और जो ये नब्ज़ वाली जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये उसने कर दी हैं। अब इसमें होगा क्या कि जिस वक्त आप ये चीज़ें करेंगे आप ये चीज़ देखें, ये आपको मेरी तस्वीर दिखाई दे रही है। अब मैं आपको समझाऊं, ये देखें, ये मेरा दिमाग है, ये सामने तस्वीर भी शेयर हो रही है, ये मेरा दिमाग है। अगर ये दिल की तरफ जाएगी तो आसाबी उज़लाती, और अगर ये जिगर की तरफ जाएगी तो इसे हम कहेंगे आसाबी गुद्दी। अब इसी तरीके से इन दोनों को लगा लें। ये जो ग्राफ बना हुआ है मुसल्लस, ये त्रिकोण बनी हुई है, इस चीज की अलामत है। अगली बात यह है कि जब आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो इसकी आप किस अंदाज से डेफिनेशन करेंगे, किस अंदाज से इसे देखेंगे, किस अंदाज से आपको ये मालूम होगा कि कौन सी नब्ज़ किस अंदाज की है। एक तो ये जो मैंने ग्राफ दे दिया है, एक ये जो मैंने किताब दे दी है। अब ये है तो ऐसे ही, ये तस्वीर भाई इस वजह से नहीं आ रही, ये ग्राफ जो मैंने दिया है और ये जो तस्वीर है, ये इसकी वजह ये है कि अगर मैं तस्वीर भेजता हूं तो वीडियो स्टिक हो जाती है, वल्लाहु आलम क्या वजह है। तो इस वजह से ये तस्वीर नहीं आ रही, लेकिन आवाज़ आ रही है। बहरहाल अब आप एक चीज देखें, आपके पास एक मरीज आया, आपने उसकी ये नब्ज़ देखी इस तरीके से, ये देखें, ये उंगलियां, ये चारों उंगलियां बराबर कर लें। आपने ये चारों उंगलियां ऐसे रखनी है, ये कलाई के नीचे ये हड्डी है, ये इसके नीचे यहाँ पर ये देखें, ये कलाई की ये हड्डी है और यहाँ एक खड़ा है, गहरी जगह है।
आपने इस हड्डी के दरमियान पहली उंगली रखनी है शहादत वाली, ये देखें इस तरीके से। अब उल्टा हाथ ऐसे ही पड़ेगा, यूं आपने ऐसे खड़ा हाथ रखना, ऐसे, ये। अब मैं आपको बताऊं कि जो उज़लाती आसाबी, सबसे पहले आप ये चीज, हमारा जिस्म कैसे तकसीम हुआ है ये, हाँ मैं अभी समझा रहा हूं, ये देखें, हमारा जिस्म ऐसे आधा आधा कर लें, यानी ये जो मांग है, नाक है, होंठ है, नाफ है और नीचे तक ये दोनों टांगे ऐसे आधा आधा कर लें। जब आप इसे आधा आधा कर लेंगे तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। अब इसे मजीद ऐसे यूं टुकड़ों में तकसीम कर लें, यहां से एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है। अब नाफ तक आ जाए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब ये 4 हिस्से हो गए। अब अगली बारी नाफ के नीचे जो है, एक दाईं टांग हो गई, एक बाईं टांग हो गई, 6 हिस्से हो गए। यही 6 तहरीकें हैं। अब आपने जो चीज देखनी है, यहां से ये नरखरे से लेकर ऐसे यूं, ये आधा जो हिस्सा है दाएं तरफ का, ये मेरा दायां हाथ है, ये जो आधा दायां हिस्सा है इसे हम कहेंगे आसाबी उज़लाती। क्या कहेंगे? आसाबी उज़लाती। फिर अगर ये पहली तहरीक है, ठीक है। 2 नंबर तहरीक यहाँ इस नरखरे से, या ये जो हमारा कांधा है यहाँ से शुरू होकर ये जो हिस्सा है नाफ तक, नाफ से नीचे तक, कूल्हे की हड्डी तक, इसे हम कहेंगे उज़लाती आसाबी। 2 तहरीकें हो गई। तीसरी तहरीक नाफ से लेकर नीचे पूरी टांग तक, पांव के नाखून तक, ये तीसरी तहरीक है, इसे हम कहेंगे उज़लाती हुद्दी तहरीक। 3 तहरीकें हो गई। अब ये जो मेरा दायां हिस्सा है ये फारिग हो गया। अब हम चौथी तहरीक की तरफ आएंगे तो ये जो उल्टा हिस्सा है, ये बाएं जानिब का जो ये सर है, पहला जो सर था ये था आसाबी उज़लाती। अब ये हो गया है कि हुद्दी उज़लाती। क्या हो गया? हुद्दी उज़लाती। ये यहाँ से, ये होंठों से, ये नाक से, ये दरमियान से इतना जो ये हिस्सा है इसे हम कहेंगे हुद्दी उज़लाती। ठीक है, 4 हो गई। अब 5वीं तहरीक, यहाँ से ये कंधे से लेकर, इस शाने से लेकर नाफ तक, ये 5वीं तहरीक हो गई, इसे कहते हैं हुद्दी आसाबी। ठीक हो गया। और फिर नाफ से लेकर नीचे तक ये जो टांग होती है इसे कहते हैं हम आसाबी हुद्दी। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये 3 कीमियावी तहरीकें हैं और 3 ही ये तो मशीनी तहरीकें हैं। अब मैं आपको ये चीज समझाऊं कि अब जो पहली तहरीक है, सबसे पहली तहरीक जो होती है आसाबी उज़लाती, ये मशीनी तहरीक होती है। इसमें जुकाम होता है, नज़ला होता है, छींकें आती हैं, यानी जो पानी का बहाव होता है ये बाहर की तरफ होता है। आप मशीनी तहरीक समझना चाह रहे थे ना। और दूसरी तहरीक है जो जिसे हम मशीनी तहरीक कहते हैं, इसको हम कहेंगे कीमियावी तहरीक। ये होगी आसाबी हुद्दी। यानी अगर आपके जिस्म में रतूबात की कसरत हो गई है तो इस तहरीक को हम कहेंगे आसाबी उज़लाती। जिस्म नरम हो गया है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, पिलपिला जिस्म हो गया है, बेजान हो गया है, किसी काम को जी नहीं करता, ये तमाम आसाब के गलबे का नतीजा होते हैं। ठीक है। दूसरी, अब इनके फवाइद क्या हैं?
आज़ाए रईसा और उनके खुदाम जो मैंने चार्ट भेजा है इसमें, अब इसमें एक चीज देखें कि नीचे एक तीर का निशान है, इस पे लिखा हुआ है कीमियावी तहरीक और दूसरी पर लिखा है मशीनी तहरीक। मशीनी तहरीक जो होती है इसका मकसद ये होता है कि एक चीज कीमियावी का मतलब ये है कि आपने ग़िज़ा खाई, ग़िज़ा खाने के बाद वो इस्तिहाला होकर उस चीज में तब्दील हो गए जो आपके जिस्म में जज़ब होने के काबिल है। हम कोई भी चीज खा लें, हम कद्दू, भिंडी, टिंडा, जो चीज चाहे खा लें, उसने इस्तिहाला होकर एक खास कवाम की सूरत में हमारे जिस्म में रुकना है, बाकी जो चीज बच जाएगी उसे हम फुजला कहते हैं। इसी तरीके से अब ये जो ग़िज़ा का जो निज़ाम है, जैसे मैंने बताया है, ये है हुदूद के मातहत। इसी का काम है ग़िज़ा को बनाना, हजम करना और जिस्म में खपा देना। उसके बाद जो फुसलात बनेंगे हमारे जिस्म में हर वक्त, जैसे हम खाते हैं और हम वॉशरूम जाते हैं तो उसमें फुसलात निकलते हैं, इसी तरीके से हमारा जिस्म खुलियात से बना है, हर खुलिया फुसला खारिज करता है, ग़िज़ा खाता है। जो ये मैल होता है ना हमारा, ये मैल नहीं होता, बुनियादी तौर पर इन खुलियात का फुसला है। आप एयर कंडीशन में बैठ जाएं, कहीं भी जहां किसी हवा का जर्रा भी बाहर का ना आए, गंदगी ना आए, रेत मिट्टी ना आए, फिर भी आपके जिस्म से मैल उतरता है। ये मैल जो होता है बुनियादी तौर पर खुलियात का फुसला होता है। ये तो हो गई। अब एक चीज है, ये तो हो गई ऐसे। अब जो मशीनी तहरीक है, किसी वजह से अगर ये बढ़ जाए तो जिस्म से इखराज शुरू हो जाता है। मसलन अगर ये आसाबी उजलाती हो गई, जुकाम लग गया, अगर पेट में आ गई तो इसहाल होने लगे। अब देखें, दो चीजें हैं, खून या रतूबत। जिस्म से एक ही दफा एक चीज खारिज होती है। जब खून जारी होगा तो खून ही आएगा, रतूबतें नहीं आएंगी। ये एक कुलिया है, क्योंकि मेरे पास आज भी एक मरीज़ा आई थी, उस बेचारे के कोई खून छूटने का मसला था। आप तमाम लोग तबीब हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि जो नाफ से ऊपर खून आएगा, जो नाफ से ऊपर खून आएगा, वो नक्सीर की सूरत में हो, दांतों से निकल रहा हो या वैसे कहीं से खून फूट पड़े, तो ये होता है उजलाती आसाबी तहरीक से। अगर नाफ से नीचे है तो ये होता है उजलाती खुदी तहरीक से। तो जो इस्तिहाज़े का मसला होता है या जिनको रसूलियाँ हो जाती हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि जब तक खून आएगा, सुर्ख खून आएगा, तो उसमें रतूबत नहीं होगी, और जब रतूबत आना शुरू हो जाएगी तो खालिस खून का निकलना बंद हो जाता है। ये दोनों मुतज़ाद चीज़ें हैं। अच्छा, अब इस्तिहारे की ये है, मैं इस्तिहारे की सूरत ये है कि मसलन एक चीज़ आपने मुरखन ग़िज़ा खाई, पराठा खाया, आपने कोरमा खाया, आपने कढ़ाई खाई, आपने कुछ भी चीज़ खाई, अब उसकी ख़ास है, वो प्रोटीन की सूरत में है, वो मिनरल की सूरत में है, पानी की सूरत में है, दूध की सूरत में है, जैसे भी है। अब वो जब हमारे यहाँ से मुंह से लग कर जाएगी तो हासमा यहाँ से शुरू हो जाएगा, वो जाते जाते मैदे में जाएगी। तो जो हुक्मा है वो कहते हैं लुकमे को चबा कर खाओ। अब जो लुकमा चबाना है ये कम से कम हमारे 32 दांत हैं। अब एक दांत एक दफा लुकमे को चबाए तो 32 दफा जो लुकमा चबाया जाता है, तो वो समझें कि वो मुंह में ही हजम के काबिल हो जाता है, मैदे को जरूरत ही नहीं पड़ती। हम खाते हैं, मोटे मोटे लुकमे खाते हैं, फिर मैदे की पक्कियाँ खाना शुरू कर देते हैं।
फिर मैदे में जाकर ये दोबारा से पकती है। हदीस पाक में आता है कि तुम अपने पेट के 3 हिस्से करो, एक खाने के लिए, एक पीने के लिए, एक हवा के लिए। जो इस उसूल पर काम करता है उसका मैदा कभी खराब नहीं होता, क्योंकि जब हंडिया पकती है, आप देग को देख लें, जब देग पकाई जाती है, हंडिया पकाई जाती है, कभी भी वो किनारों तक फुल करके नहीं रखी जाती, उसमें गुंजाइश छोड़ी जाती है कि जब वो पकती है उससे भाप भी निकलती है, पानी भी उबलता है, सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही मैदे में भी ग़िज़ा दोबारा से पकती है, इसमें बुखारात भी पैदा होते हैं, गैसेस पैदा होती है, उनके लिए जगह होनी चाहिए। अगर जगह होगी तो आप तंग नहीं होगे, जगह नहीं होगी तो आपको अफारा आ जाएगा। तो वो फिर निकलते निकलते आखिर में जिगर में वो जो जूस निकलते वो फिर एक खास मखसूस चीज बनती है दूध की शक्ल की, उसे हम कैलूस कहते हैं। वो फिर जिगर में जाकर पकती है और फिर ये खून में तब्दील होती है। खून एक पेचीदा अमल है, हड्डियों में भी इसका जो है ना प्रोसेस चलता है, जिगर में भी चलता है, ये फेफड़ों में भी साफ होता है, गुर्दों में भी साफ होता है। ये अल्लाह ने इतनी पेचीदगी पैदा करती है, सही तशरीह इसकी हो ही नहीं सकती। खैर, इस्तिहाला इसे कहते हैं कि वो जो खुराक है वो इस हालत में आ जाए कि हमारा जिस्म उसे बतौर ग़िज़ा कबूल कर ले, इसे इस्तिहाला कहते हैं। खैर, जब आप ये चीज करेंगे, नबज़ देखेंगे, सबसे पहले आपने, अब मैं खुलासा बताता हूँ, सबसे पहले आपने 2 चीजें देखनी है। एक, पानी का तसव्वुर करना है, आपने गुब्बारे में किसी लिक्विड चीज को भर दिया या कुछ भी कर दिया नरम चीज में, तो आप उसको देखेंगे तो आपकी उंगलियां बताएंगी कि अंदर कोई चीज ऐसी है जो पिलपिली है, पानी की तरह इधर उधर होती है। तो ये कोई संभालना, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा ये कि आपने गुब्बारा फुलाया, उसमें हवा है, जब आप उंगलियां ऐसे करेंगे दब तो वो भी, पानी भी दबाए और ये हवा भी दब जाएगी, लेकिन हवा में जो सख्ती होगी वो पानी में नहीं होगी। पानी में ठंडक होगी, नरमी होगी और उसमें लीनत होगी, और हवा में सख्ती होगी, उभार होगा, और अगर उसे जगह मिल जाए तो वहीं से वो सुर करके हवा निकल कर वो फिजा में चली जाएगी। तो ये चीजें रखें। तो जब आप इसको देखेंगे तो अगर नरम है, ठंडी है, इसकी धड़कन भी कम है, तो ये आसाबी। और अगर इसमें ठंड नहीं है, सख्ती है, ये दबाते ही ऐसे महसूस करता है, ये बताता है कि कोई चीज अंदर धड़क रही है, तो ये खुश्की है, उछलाती है। और अगर ये कुछ नहीं है तो फिर गर्मी है, गर्मी से तो हर चीज देखें, कोई भी असू जो है उसकी 3 हालतें होती हैं। एक, वो असल हालत में होता है। दूसरी बात ये है वो फैलता है, फूलता है, सिकुड़ता है। ये 3 चीजें। अगर फैलता है तो ये गर्मी की वजह से होगा, अगर फूलता है तो हवा की वजह से होगा, अगर ये सिकुड़ता है तो खुश्की की वजह से। बात मेरी समझे, ये एक कानून है। मसलन किसी की उंगली सूज गई तो आप ये इस सुझाव में ये चीज देखेंगे, जब उसमें हाथ लगाएंगे तो वो गर्म महसूस होगी। खुदा न खास्ता किसी का कोई अज़ू, हाथ, उंगली, कोई भी चीज सूखना शुरू हो गई तो उसमें जो ये नरमी होती है, ये जो मांस होता है, इसमें जो लीनत होती है, ये खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इससे हम कहेंगे खुश्की की वजह से सिकुड़ रहा है। और अगर कोई चीज फूल रही है, एक है फैलना, मसलन जैसे अगर आपने मोमबत्ती लगाई, अब वो गर्मी की वजह से मोम पिघल कर फैल रहा है, तो ये गर्मी की वजह से है। एक है फूल गई, जैसे किसी चीज में कोई चीज भरती है और वो उस भराव की वजह से वो चीज फूलती है। और तीसरी सिकुड़ती है। जो फैलना है ये गर्मी की वजह से, जो फूलना है ये तरी की वजह से, जो सिकुड़ना है ये खुश्की की वजह से होता है। तो मैंने आपको ये चीज बताई कि ये जो नब्ज़ है आपने कैसे देखनी है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा
कल के दरस में इंशाल्लाह, जो कल छुट्टी होनी चाहिए थी लेकिन हमारा कल का दर्स रह गया था, कल मैं आपको जो इंशाल्लाह क्लास पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ये चार्ट भी आपको मिलेगा और ये जो किताब है ये भी आपको मिलेगी। आप इसका मुताला करें, इसका तजर्बा करें, इसका प्रैक्टिकल करें। कल मैं आपसे पूछूंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मर्ज किस दर्जे में है, सोजिश में है, इल्तिहाब में है, वरम में है, ये 6 दर्जात होते हैं और इन 6 दर्जात में कौन सी दवा देनी चाहिए पता तो होना चाहिए ना कि मर्ज किस दर्जे में है और इसके लिए कौन सी दवा दी जाएगी। कल इंशाल्लाह मैं ये चीज बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि वक्त हो गया है। आज जो भी कुछ हुआ, जितना कुछ हुआ बसा गनीमत है। तो ये 2 चीजें हैं। अब मैं आपको व्हाट्सएप पर आप जो सवालात करेंगे इस सबक के मुतालिका मैं आपको उसके जवाबात दूंगा। अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं और व्हाट्सएप पर आ जाए जिनके जो सवालात, और कल जो है वो पूछें इसके बारे में। मैं कल ये बताऊंगा कि ये जो नबज़ है ये आपने कैसे समझी है, आप मुझे समझाएंगे जैसे मैंने समझाया है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि नबज़ अगर मर्ज किस दर्जे में, पहले में है कौन सी दवा दी जाएगी, दूसरे में है कौन सी दी जाएगी, तीसरा है कौन सी दी जाएगी, चौथा है कौन सी दी जाएगी, 5वां, 6ठा ऐसे ही दी जाएगी, हत्ता के कैंसर तक। बवासीर है, कैंसर है, मोटापा है, कुछ भी है उसका आप हल कर लेंगे। देखिए अब मैं आपको एक आखिरी कुलिया बताता हूं। किसी जगह पर पानी भर गया, किसी जगह पर पानी भर गया। अब ये एक 2 हरफी बात है, अगर आप इसे समझ गए तो कानून मुफरद आज़ा का इलाज करना आपके लिए आसान हो जाए। हमारे यहाँ बारिशें हो रही, आज भी सारे दिन बारिश हुई है। तो पानी भर गया, पानी भर गया, वो कहीं भी है, घर में भर गया या किसी कमरे से कोई वॉशरूम की टूटी लीक कर रही है, कमरे में पानी आ रहा है। अब आप क्या करें? अब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो वो पानी भरा है उसे आप आग जलाकर खुशक कर दें, ठीक है, खुशक हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप आग पर पानी को रखें, नीचे आग जला दें, वो भाप बनकर उठ जाएगा। दूसरी ये है कि आप उस पानी में मिट्टी डाल दें। अब ये जो मिट्टी डालना है ये उस पानी को जल्द खुशक कर देगा। तो यही एक जो मैंने ये आसाब, ये पानी है, बलगम है, तरी है, आपको जुकाम लग गया, ठंड लग गई, आपको असाबियत हो गई, शुगर हो गई। अब इसके 2 तरीके हैं इलाज। एक तरीका ये है कि आप जिगर को तहरीक देते हैं, गर्मी पैदा करते हैं, जिससे जो सर्दी पैदा हो गई है, नरमी पैदा हो गई है, जिस्म में खार की कसरत हो गई है, यह उस गर्मी से आहिस्ता 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 खत्म हो जाए। दूसरा ये है कि आप उस्लात का इस्तेमाल करते हैं, उस्लात को हरकत देते हैं। जब उस्लात को हरकत देंगे तो ये जो नज़ला, जुकाम और ये जो आसाबियत बढ़ चुकी है ये जल्द फारिग हो जाएगी। अब इलाज दोनों है। आप मसलन आपको आसाबी उजलाती हुई या आसाबी हुद्दी, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, हुद्दी आसाबी कर दें या उजलाती आसाबी कर दें, दोनों में फायदा है। ये अब मालिज देखेगा कि कौन सी चीज दस्तयाब है, कौन सी चीज जल्द फायदा कर देती है, ये मालिज के ऊपर है। इंशाल्लाह इन 3 माह में हम ये चीजें आपको समझा देंगे। तो बात ये है भाई, इसी तरीके से कोई चीज सूख गई है, कोई चीज सख्त हो गई है, सूख गई है, किसी का हाथ सूख गया है, खुश्क हो गया है। अब ये खुश्क इस वजह से हुआ है कि इसमें जितनी गरमाइश थी, जितनी हीट की जरूरत थी और जितनी इसमें नरमी के लिए हीट चाहिए थी वो हीट नहीं रही
اور اس میں جتنی رطوبت درکار تھی وہ نہیں رہی تو یہ عضو خشک ہونا شروع ہو گیا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو گرم کریں اور وہ گرمی بھاپ کے ذریعے سے ہو تو یہ دوبارہ سے ہرا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو رگ پٹھے مر چکے ہیں دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیں. دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال یہ ہے کہ آپ کے کوئی خدا نخواستہ کوئی رسولی ہو گئی ہے, کوئی جسم میں اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے, کوئی سکتے پڑ گئے ہیں, آنکھ میں گانٹھ پڑ گئی ہے یا دل کے وال رک گئے ہیں. اب وہ رکنا اس بنیاد پہ ہے کہ جسم کو یا اس عضو کو جتنی گرمی کی ضرورت تھی وہ گرمی نہیں ملی تو یہ جو عضو تھا یا جو یہ غدود تھا یہ پھول گیا اور یہ پھول کے سدے کی صورت اختیار کر گیا, گھوڑے کی صورت, رسولی کی صورت اختیار کر گیا. اب یہ ایسا کیوں ہے؟ اب میں آپ کو اس چیز کے بھی بتا دوں نا. یہ اس لیے ہے کہ آپ سردیوں میں دیکھیں کہ جب ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے, انتہا درجے کی ٹھنڈ ہوتی ہے, یہ آپ نومبر دسمبر جنوری تک آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں پھول جاتی ہیں, درد کرتی ہیں, پیروں کی انگلیاں سوکھ جاتی ہیں. اب یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ان انگلیوں کو معتدل رکھنے کے لیے سیک کی ضرورت تھی, حرارت کی ضرورت تھی, وہ نہیں مل رہی. ٹھنڈ باہر سے غالب آ گئی تو یہ حرارت نہ ملنے کی وجہ سے یہ پھول گئی, اب درد کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا. اللہ رب العزت آپ کو یہ دیکھیں, یہ جتنے بھی سوالات ہیں آپ گروپ میں کریں تو آسانی رہے گی. آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.